Hello and welcome to Sweat's classes. Subject English from the First Flight textbook. Chapter 3 Two Stories About Flying. इस चैप्टर में दो स्टोरीज है. पहली His First Flight by Liam O'Flaherty और दूसरी Black Aeroplane by Frederick Forsyth. Today we will learn the first story. His First Flight is a story of a young seagull who is afraid to fly. How does he overcome it? We will learn in this chapter. First, let's understand about the author. Liam O'Flaherty was an Irish novelist, short story writer. He wrote almost exclusively in English, except for a small number of short stories in the Irish language. ये एक आयरिश नॉवेलिस्ट थे, साथ में एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी. इनके बहुत सारे वर्क्स इंग्लिश में थे, सिवाय के कुछ शॉर्ट स्टोरीज आयरिश लैंग्वेज में. Now let's understand the story. The young seagull was alone on his ledge, meaning a narrow horizontal shelf projecting from a wall or here a cliff. A cliff यानी एक पहाड़ का किनारा, वहाँ पे किनारे पे एक narrow horizontal shelf था और उसी shelf पे एक young seagull अकेला खड़ा था. His two brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. उसके दो भाई और एक सिस्टर एक दिन पहले ही उड़ के चले गए और ये उनके साथ उड़ के जाने वाला था, पर इसको डर था. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. ब्रिंक यहाँ पे एज है, तो वो लेज से लेके एज तक भाग के आया और एज पे आके वो जब अपने विंग्स को फ्लैप कर रहा था तो वो डर गया. The great expanse of sea stretched down beneath and it was such a long way down, miles down. Expanse का मतलब है एक wide continuous area of something. तो यहाँ पे वो जब एज पे आके वो देखता है तो नीचे की तरफ एक बड़ा सा सी है और वो बहुत गहरा है. शायद ये देख के वो डर गया होगा. He felt certain that his wings would never support him. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. जब वो एज पे आया, वो अपने विंग्स जब फ्लैप कर रहा था, उसको अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा था कि विंग्स उसको सपोर्ट नहीं करेंगे. इसलिए उसने अपना सिर नीचे करके वापस भाग के लेज पे एक छोटा सा होल था वहाँ चला गया और पूरी रात वहाँ पे ही सोया. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings, and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. To muster यानी assemble करना या gather करना. Plunge का मतलब है jump या dive quickly and energetically. और desperate का मतलब है having a great need or desire for something. इसके दोनों ब्रदर्स और लिटिल सिस्टर के विंग्स इससे भी छोटे थे, फिर भी वो लोग ब्रिंक यानी एज तक भाग के आए, विंग्स को फ्लैप किया और वहाँ से उड़ के चला गया. और जब इसकी बारी आई तो वो वहाँ एज पे पहुँचने के बाद वो अपनी स्ट्रेंथ या अपना करेज इकट्ठा नहीं कर पाया और इसमें हिम्मत नहीं थी कि जंप मारने की, और ये बहुत वो डेस्परेट था करने के लिए, पर वो कर नहीं पाया. His father and mother had come around calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. But for the life of him, he could not move. Shrilly का मतलब है with a high pitched and piercing voice or sound, और upbraiding का मतलब है scolding.
तो इसके फादर और मदर इसके पास आए, उसको पहले प्यार से समझाया था पर वो नहीं मारा। फिर उसको श्रिलिंग यानी बहुत ऊंची आवाज़ में, तीखी आवाज़ में उससे बात किया, फिर भी नहीं माना। फिर उसको अपब्रीडिंग यानी डांटने लगे ज़ोर ज़ोर से, फिर भी नहीं माना। फिर उसको थ्रेटन किया यानी धमकी दे दी कि यहाँ पे तू रहेगा तो तू भूखा मरेगा, और ऐसे करके वो लोग चले गए। इतने सब कुछ बोलने के बावजूद वो वहाँ से हिला भी नहीं। That was 24 hours ago. Since then, nobody had come near him. और इस बात को, ये धमकी और धमकाने वाली बात को 24 घंटे हो चुके थे, और उसके फैमिली के कोई भी ये 24 आवर्स में कोई भी उसे मिलने नहीं आया। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim and how to dive for fish. To skim का मतलब है to move lightly just above a surface. यहाँ पे सी के सरफेस पे कैसे उड़ना चाहिए वो। तो कल यानी 24 घंटे जब उसको वार्निंग दे के जब सुबह हुआ, वो पूरे दिन उसने क्या देखा कि उसके पेरेंट्स, उसके ब्रदर्स और सिस्टर्स को उड़ने की कला सिखा रहे थे, और कैसे सी के ऊपर से स्मूथली उड़ना सिखाया, और साथ में पानी के अंदर, सी के अंदर डाइव करके फिश को कैसे पकड़ना है वो भी उसको सिखा रहे थे। और ये सीगुल वहाँ पे लेड्ज पे बैठ के आराम से वो वहाँ से देख रहा था। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock while his parents circled around raising a proud crackle. Herring का मतलब है a soft finned sea fish. Devour का मतलब है to eat hungrily or quickly. और crackle यानी sound produce करना birds ने। उस दिन उसने क्या देखा, उसके बड़े भाई ने क्या किया, वो सी के ऊपर उड़ रहा था, तब उसने पहली फिश को पकड़ा। हेरिंग यानी एक फिश है, वो फिश को उसने डाइव करके पकड़ लिया। जैसे ही पकड़ लिया उसने जल्दी जल्दी उसको खा लिया, और उसके पेरेंट्स वो जहाँ था उसके ऊपर गोल गोल घूम रहे थे और आवाज़ कर रहे थे, और वो जता रहे थे कि हम बहुत प्राउड है कि इसने ऐसा काम किया। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his covered eyes. और वो पूरा सुबह सारी फैमिली सामने के तरफ, सामने एक बड़ा सा प्लेटू था और उस पे एक क्लिफ था, तो वो क्लिफ पे उन लोग सब चले गए थे, और ये सीगुल अकेला इस तरफ था, और वहाँ से सब इसको चिढ़ा रहे थे। The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. अब सुबह हो चुकी थी और सनराइज हो रहा था, और सन के जो रेस थे वो डायरेक्ट इस क्लिफ पे था, गिर रहा था, और यहाँ पे इसके बॉडी पे ज़्यादा हीट फील हो रहा था क्योंकि उसने लास्ट 24 आवर्स से कुछ खाया नहीं था। He stepped slowly out of the brink of the ledge, and standing on one leg with the other hidden under his wing, he closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. Still, they took no notice of him. अब इतनी धूप गिरने के कारण वो एकदम एक्सॉस्ट हो गया था, कुछ खाया नहीं था, पिया नहीं था, फिर भी वो बाहर आया, एड्स पे खड़ा रहा,
और एज पे आके उसने एक पैर को बेंड कर लिया और एक पैर पे वो सोने की कोशिश कर रहा था। उसने एक आंख बंद कर दी और दूसरी भी, और दूसरी थोड़ी सी खुली रखी थी और वो प्रिटेंड कर रहा था कि वो सो रहा है। ये देख के उसके फैमिली मेंबर्स किसी ने भी उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। He saw his two brothers and his sisters lying on the plateau dozing, with their heads sunk into their necks. His father was preening the feathers on his white back. Dozing यानी सो रहे थे, sleeping. Preening का मतलब making an effort to maintain feathers. उसने वो pretend कर रहा था ना सोने का, वहाँ से उसने देखा उसके दोनों ब्रदर्स और सिस्टर्स क्या कर रहे थे, प्लेटू पे सो रहे थे। अपना सर नेक के साथ रख के वो लोग सो रहे थे। और उसने जब देखा उसके फादर को, तो उसके फादर अपने फेदर्स को साफ कर रहे थे, क्लीन कर रहे थे। Only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. उसने ये देखा कि सिर्फ मेरी माँ मुझे देख रही है। और वो कहाँ खड़ी थी, एक छोटे से हाई हम्प प्लेटू पे ही एक छोटा सा हम्प था, उस पे वो खड़े रह के वो ध्यान से देख रही थी। और वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट यानी अपने जो आगे का पोर्शन है ये, वो आगे की तरफ निकल के था। Now and again she tore a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of a beak on the rock. Scraped का मतलब है डिस्कार्ड या रिमूव, निकालना। तो वहाँ खड़े रह के उसकी मदर क्या कर रही थी, एक फिश था उनके पास और वो फिश को टैर कर रही थी। टैर करने के बाद जो बीक है वो एक रॉक के सामने रब कर रही थी, साइडवेज दोनों तरफ उसका बीक रॉक के तरफ रख के वो दोनों तरफ रब कर रही थी। The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. अब ये जो नज़ारा था उसकी मदर जो कर रही थी, जैसे वो फिश को निकालने के बाद फिश को छोटे छोटे टुकड़े में करके अपना बीक रॉक के तरफ जो रब कर रही थी, ये नज़ारा उसको बहुत ज़्यादा मैड कर रहा था, क्योंकि इसको ये बहुत पसंद था। वो फूड को यानी फिश को ऐसे टैर करना और अपने बीक को रॉक के तरफ रब करना ताकि वो शार्प हो जाए, ये करना उसे बहुत अच्छा लगता था। Ga ga ga, he cried, begging her to bring him some food. Ga cola, she screamed back discursively. But he kept calling plaintively, and after a minute or so, he uttered a joyful scream. ये गा 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 करके बैग कर रहा था अपनी माँ को कि प्लीज़ मेरे लिए खाना लेके आओ। और वहाँ से उसकी माँ गा कोहला करके स्क्रीम कर रही थी वापस, और उसको ये बता रही थी तू एक स्टूपिड पर्सन है, तू उड़ के क्यों नहीं आता। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेनिटिवली, यानी वो बहुत ही सैड लो वॉइस में प्लीज़ माँ मुझे खाना दिला दो, गा 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 करके वो बोल रहा था। और 1 मिनट के बाद उसने देखा तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, खुशी के मारे वो स्क्रीम करने लगा। His mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. उसने क्या देखा, उसकी मदर एक पीस ऑफ फिश लेके उसके तरफ उड़ के आ रही थी, इसलिए ये ज़्यादा खुश हो गया था और अपने पैर को रॉक पे मार रहा था, टैप कर रहा था, और ये वेट कर रहा था उस मोमेंट के लिए जब वो उसके नज़दीक आए और उसको वो फिश खाने को
मिलेगा। But when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by by hunger, he dived at the fish. पर उसकी मदर ने क्या किया, वो एज तक पहुंची और कुछ दूरी बना के रख के वो स्टॉप हो गई। अब उसके मुंह में वो फिश का टुकड़ा तो था ही, और ये एक मोमेंट के लिए एकदम सरप्राइज हो गया, क्यों आ नहीं रही है। पर उसने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मेरे को तो बहुत ज़्यादा भूख लगा है, मैं ही माँ के तरफ डाइव कर लेता हूँ, और ये तो मैं रीच ही कर सकता हूँ, आराम से मैं पहुँच सकता हूँ। तो उसने डाइव किया वो फिश पकड़ने के लिए। With a loud scream, he fell down outwards and downwards into space. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. और उसको तो ऐसा लगा था कि ये तो बहुत नज़दीक है, मैं डाइव करके मैं पकड़ लूँगा। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि नीचे वो गहरा है और सी है करके। और उसने क्या किया, डाइव किया। और जैसे ही उसने डाइव किया, वो नीचे की तरफ गिरने लगा। और नीचे जब जा रहा था, उसको एक मॉन्स्टरस टेरर, यानी हैविंग द अगली और फ्राइटनिंग अपीयरेंस ऑफ अ मॉन्स्टर, इतना ज़्यादा डर, जैसे हम लोग रोलर कोस्टर राइड पे होते हैं और ऊपर जाते हैं और ऊपर से जब नीचे आते एकदम स्पीड में, तो वो जो डर है ना, वो डर उसको लग रहा था। और उसको ऐसा लग रहा था कि मैं ख़त्म, ये ख़त्म ही हो जाने वाला है, और उसका दिल धड़कना बंद हो जाएगा। उतना ज़्यादा डर गया था और बहुत ज़ोर से चीख रहा था। He could hear nothing, but it only lasted a minute. The next moment, he felt his wings spread outwards. The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wing. उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, और ये जो डर और वो जो गिर रहा था, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट तक था। 1 मिनट के बाद तुरंत उसको ऐसा लगा कि उसके विंग्स खुल गए हैं, और विंड जो ब्लो हो रहा है वो अपने ब्रेस्ट के फेदर्स पे और उसके स्टमक और उसके विंग्स के पार से जा रहा है करके। He could feel the tip of his cutting through the air. He was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and outwards. अब उसको ऐसा लग रहा था कि अब तो वो गिर नहीं रहा है। हेडलॉन्ग का मतलब सिर के बल नीचे, विद द हेड फॉरमोस्ट, और सोरिंग का मतलब फ्लाइंग और राइजिंग हाई इन एयर। तो अब उसको ऐसा नहीं लग रहा था कि वो गिर रहा है, उसको कहीं ना कहीं उसको ऐसा लग रहा था कि मेरे विंग्स है, और विंग्स वो फ्लैप कर करके उसको ऐसा लग रहा था मैं तो उड़ रहा हूँ। और वो किधर की तरफ उड़ने लगा, उसके विंग्स इतने ज़ोर ज़ोर से वो फ्लैप कर रहा होगा कि वो ऊपर की तरफ जाने लगा। एंड ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स, और बाहर, नीचे की तरफ और बाहर की तरफ वो उड़ने लगा। He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. Dizzy का मतलब uncomfortable feeling of spinning around and losing one's balance. अब उसको बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, वो आराम से उड़ रहा था। उसने सीख लिया उड़ना, पर उसको थोड़ा डिजीनेस, यानी उसको थोड़ा अनकंफर्टेबल फीलिंग हो रहा था, यानी इसको ऐसा लग रहा था चक्कर आ रहे करके, वो अपना बैलेंस खो रहा था। Then he flapped his wings once and he soared upward. Ga ga ga, ga ga ga. Ga ko ga. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. अब उसने जोर से अपने विंग्स को फ्लैप करके वो और ऊपर की तरफ उड़ने लगा और गा 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 करके बोलने लगा। और उसकी मदर
गा को गा बोल के उसके बाजू में से उड़ के चली गई, और जब वो गई तो उसके विंग्स में से बहुत ज़ोर से साउंड आया, और इसका रिस्पॉन्स उसने भी ज़ोर से स्क्रीम करके दिया. Then his father flew over him screaming. He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and blinking and soaring and diving. उसके फादर सामने वाले क्लिफ में अपने फेदर्स को साफ कर रहे थे. उसके दो ब्रदर्स और सिस्टर्स तो सो रहे थे. जैसे ये उड़ने लगा और ये गा 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 करके उड़ रहा था, उसने क्या देखा, थोड़ी देर में उसके फादर भी आ गए और फादर उसके ऊपर उड़ रहे. उसके दोनों ब्रदर्स और सिस्टर्स भी क्या कर रहे थे, कर्वेटिंग यानी घोड़े की तरह लीप कर रहे थे. और ब्लैंकिंग का मतलब है फ्लाइंग विथ वन विंग हायर देन दी अदर, यानी एक विंग ऊपर की तरफ और एक विंग नीचे की तरफ करके वो लोग उड़ रहे थे. और सोरिंग यानी ऊपर की तरफ हाई, स्काई में हाई उड़ रहे थे. और डाइविंग यानी पानी के अंदर डुबकी मारना. तो इस तरह उसके सारे फैमिली मेम्बर्स, वो जब उड़ रहा था उसके ऊपर और आसपास ये लोग सब लोग उड़ रहे थे. Then he completely forgot that he had not always been able to fly, and commended himself to dive and soar and curve, streaking shilling. He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. यहाँ पे commended का मतलब है praise formally, और streaking का मतलब uttering a high pitch sound. shrilling का भी मतलब वही होता है. अब ये टोटली भूल गया था कि इसको उड़ना नहीं आता था. ये अब अपने आप को बता रहा था या जता रहा था कि हाँ देखो मेरे को भी उड़ना आ गया है. और वो भी क्या कर रहा था, डाइव करना, कैसे उसके ब्रदर्स कर्व करके उड़ रहे थे, ये ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बता रहा था कि देखो मेरे को भी उड़ना आ गया है. He was near the sea, अब सी के पास आ गया और सी के ऊपर से वो उड़ रहा था. और वो खुशी के मारे सबको, अपने फैमिली मेम्बर्स को सबको बता रहा था देखो मैं भी अच्छे से उड़ सकता हूँ. He saw a vast green sea beneath him, with little reeds moving over it, and he turned his beak sideways and cawed muesli. रिड्स का मतलब अ लॉन्ग नैरो हिल टॉप माउंटेन रेंज और वाटरशेड, यानी जो वेव्स है, और वेव्स जैसे हम लोग ऊपर के छोटा सा एक नैरो रेंज होता है वो वैसे फॉर्म होता है उस पे. और यहाँ पे अम्यूसली का मतलब एंटरटेनिंग मैनर में. अब उसने नीचे क्या देखा, बड़ा सा एक ग्रीन कलर का सी है और जिसपे वेव्स भी है, और वेव्स उसके ऊपर से जा रहे हैं. और ये अपने बीक को साइडवेज दोनों तरफ, इधर और उधर दोनों तरफ मुड़ के वो आवाज बना रहा था और दूसरों को दिखा रहा था देखो देखो मैं कैसे उड़ सकता हूँ. His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilling. अब उसके पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये जो ग्रीन कलर का जो सी था उस पे उन लोग आके लैंड कर चुके हैं. और लैंड करने के बाद बेकॉनिंग का मतलब क्या है, मेक अ जेस्चर विद द हैंड, आर्म और हेड टू एनकरेज और इंस्ट्रक्ट समवन टू अप्रोच और फॉलो. वो लोग सी के अंदर आके उन लोग लैंड कर चुके थे और वहाँ से उसको, वो अकेला उड़ रहा था और उसको हाथ बताया कि आजा तू भी आजा, यहाँ पे लैंड कर, पानी के अंदर लैंड कर. He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. But he was tired and weak with hunger
and he could not rise, exhausted by the strange exercise. अब ये उड़ते उड़ते नीचे अपने सी के पास जैसे आया, उसने अपने पैर सी के अंदर डाला। जैसे उसके पैर सैंक यानी पानी के अंदर डूबता गया, वो डर गया और वो वापस अपने विंग्स को फ्लैप करके उड़ने की कोशिश किया, पर ये बहुत थका हुआ था और भूख के मारे बहुत ज़्यादा वीक था। अब उसमें उतनी ताकत नहीं थी कि वो और विंग्स को फ्लैप करके और ऊपर जाए। His feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no farther. He was floating on it and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. He had made his first flight. अब वो पानी के अंदर अपने वापस फीट डूब गए। डूबने के बाद धीरे धीरे उसकी जो बेली थी यानी पेट था, वो भी पानी को टच हो गया। टच होने के बाद वो आगे और डूबा नहीं, वो पानी के ऊपर तैर रहा था और उसकी फैमिली आसपास सब लोग थे और सब लोग प्रेस कर रहे थे, चिल्ला रहे थे खुशी के मारे। और उन्होंने उनके बीक्स में स्क्रैप्स यानी छोटे छोटे टुकड़े थे, किसके? डॉग फिश के, और वो उसको खिला रहे थे कि ले खा अब तू। और इस तरह उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट की। तो ये थी इस चैप्टर की स्टोरी कि एक सीगल जो डरपोक था, कैसे वो उड़ नहीं पा रहा था, तो उसकी मदर आती है और उसको खाने देने के बहाने वो उड़ने लगता है और उसका जो डर था वो पूरा ख़त्म हो जाता है। तो दिस इज़ हाउ ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। और इस पे से आपको पता चला होगा कि इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है उसका नाम भी फर्स्ट फ्लाइट है और वो इस चैप्टर में से लिया है। Thank you. Until next video, keep learning and keep practicing.